अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द सेकंड वीडियो इन माय रमज़ान सीरीज़ 2024। मैंने फर्स्ट वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड की थी जिसमें मैंने अपनी सहरी और इफ्तारी की प्रेप सिखाई थी एंड आई शेयर्ड सम वेरी गुड रिकमेंडेशंस फॉर हेल्दी होममेड फूड सर्विसेज इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। तो अगर तो आप इन दोनों शहरों से हैं, बी श्योर टू चेक आउट माय वीडियो। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान अच्छा गुजार रहा होगा। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव notifications of my upcoming videos. In this second video in my Ramzan series, I'm doing a much requested review of an air fryer. जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की और मैंने उसमें बताया कि मैं रोल्स और समोसाज एयर फ्रायर में बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि दे वांट टू हैव एन एयर फ्रायर रिव्यूड। तो मैंने कहा कि मैं एयर फ्रायर यूज़ भी करती हूँ और रमज़ान के अंदर ये इतना रेलिवेंट है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट अप दिस रिव्यू एंड शो इट टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है ये रिव्यू बहुत रेलिवेंट है रमज़ान से एंड अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि हम लोग बहुत शौकीन है फ्राइड फूड्स खाने के। हम पाकिस्तानी एशियन लोग, हमें समोसास पकौड़ास और रोल्स बहुत पसंद है अपनी इफ्तारियों में। और जब आप उनको डीप फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस हो जाता है। सो अगर आप मेरी तरह हेल्दी फूड की तरफ इंक्लाइंड हैं और एक कैलोरिक बजट में रहना चाहते हैं तो एयर फ्रायर इज़ योर बेस्ट ऑप्शन. So keep on watching this video till the end. I'm sure this is going to be very helpful for anyone who is considering to buy an air fryer. In the end, I will share my take if I think air fryer is worth investing or not. Before starting, मैं आप लोगों को quickly बता देती हूँ कि हम आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं. I'm going to show you different parts of the air fryer and I'm going to tell you कि what each part is meant for. Then we will move on to the functionality or specs of the air fryer, and then I will do a live demo of how I use the air fryer, and I will also tell you what are the common foods that you can make in the air fryer. In the end, I will share my take if I think air fryer is worth investing or not. Okay, so this is the air fryer machine that I have. As you can see that this is a Philips air fryer. Before starting, I want to quickly tell you what are the common brands available for air fryers in Pakistan. There is Tefal, which is a little high end. There is NX, which is a little low end, and there is Dollins and Philips, which I think are in the mid range, and these are perfect for households like mine and probably yours, जो कि air fryer के benefits avail करना चाहते हैं and they want something in budget. So I've been using this Philips air fryer for more than 2 years now. As you can see that it has signs of use and there are some scratches on the top क्योंकि मैंने खुला रखा हुआ था. And there's one more thing that I want to tell you. I don't have the box of the air fryer. मैं चाहती थी कि मैं box से निकाल कर आपको kind of unboxing करके दिखाऊं कि packaging से किस तरह निकालते हैं, because that is the first step that you take when you bring your air fryer home from the store or if you have ordered online. So unfortunately, I don't have the box. We discarded the box few weeks back and then we decided to record this video, so हमारी timing थोड़ी खराब हो गई है. So air fryer come in different sizes and different shapes. मैंने square top वाले air fryers भी देखे हैं. This is more of a rectangle oval shape, but there are different sizes and different shapes in air fryer. So the one that I have is 4.1 liters in size. जो दो मोस्ट कॉमन साइजेस फिलिप्स एयर फ्रायर में आते हैं वो 4.1 लीटर्स एंड 6.2 लीटर्स है. दिस 4.1 लीटर साइज इज परफेक्ट फॉर अ फैमिली ऑफ 2 पीपल लाइक माइन, जिसमें आप फ्राइज, समोसाज, पकौड़ाज, रोल्स वगैरह बहुत आसानी से बना सकते हैं. इट हैज़ सफिशिएंट स्पेस फॉर इट. सो लेट मी शो यू द पार्ट्स ऑफ द एयर फ्रायर. अगर तो आप एयर फ्रायर लेने का वाकई सोच रहे हैं तो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आप देख सकें कि एयर फ्रायर के एक्जैक्टली क्या कंपोनेंट्स होते हैं. सो लेट्स डिग इन और लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर यू. Okay, so before opening, मैं आप लोग को बाहर से दिखा देती हूँ कि what exactly is going on here. First of all, the Philips air fryer come with a manual as well as an electronic setting. The one I have here is manual. अच्छा, on the top it has different settings for different kind of foods. This is for frozen fries, this is for not frozen fries, and then we have chicken, we have fish, and we have cupcakes. दिस इज़ ऑल्सो अ सेटिंग विच आई कैन नॉट आइडेंटिफाई फ्रॉम द आइकन. लेकिन इन्होंने इन सब डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए टेम्परेचर और टाइम लिखा हुआ है कि आपने किस टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए पकाना है फॉर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स. ओके, सो दिस इज़ ऑन टॉप ऑफ द एयर फ्रायर. अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक एयर फ्रायर लेते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग तो उसके ऊपर प्रीसेट प्रोग्राम्स इधर विंडो पे लिखे होते हैं एंड यू जस्ट क्लिक ऑन इट टू सेट योर प्रोग्राम. यहाँ पर मैन्युअली हमें खुद से सेट करना पड़ेगा थ्रू मूविंग दीज नॉब्स फॉर टेम्परेचर एंड टाइम. आई एम गोइंग टू कम टू दीज knobs later on. पहले मैं आपको इसको पीछे से दिखाना चाहती हूँ. This is how it looks from the back. This is the cable or the wire. This is average in length. कोई इतना लंबा नहीं है, तो अगर तो आपका इलेक्ट्रिक सॉकेट दूर है आपको एक एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी. Okay, so now let me show you what goes on the front side of the air fryer. We have these knobs for setting the
टाइम एंड द टेम्परेचर, बहुत easily movable है like a regular knob on any machine, and we have the timer till 60 minutes. आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं. Either you can use these settings or you can use your better judgment. उसके बाद we have the scale or the knob for temperature, and we have the temperature available from 80 degrees till 200. So depending on what you are cooking or making, you can use the temperature accordingly. I'm going to turn off the timer because it comes with its sound. This right here is the drawer of the air fryer, and this is the pan in which you cook your food. इसको हम लोग basket कहते हैं. This basket is completely removable. You can take it out, put your food, and then put it back just like that with a click. अच्छा जी, इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये कम्प्लीटली वॉशेबल हैं. आप इनको सोपी वाटर से वॉश कर सकते हैं, बल्कि रिकमेंड किया जाता है कि जब आपका एयर फ्रायर नया नया आया है और आपने सारी पैकेजिंग रिमूव की है तो आप हल्के स्पंज से, नॉट विद द स्टील स्पंज, डोंट यूज़ दैट एब्रेसिव स्टील स्पंज जो आपका सॉफ्ट स्पंज होता है जिससे आप अदरवाइज बर्तन धोते हैं. उससे आप सोपी वाटर से इस बास्केट को और इस ड्रॉर को पहले वॉश करें और फिर इस्तेमाल करें. एंड इफ़ यू आर लिविंग अब्रॉड, you can also wash this in a dishwasher. This is dishwasher safe. मैंने ऑनलाइन कुछ एयर फ्रायर्स देखे हैं जिनका मैश रिमूवेबल होता है. सो यू कैन कम्प्लीटली टेक ऑफ दिस मैश, wash it and then insert it back. This Philips air fryer that I have, it does not have a removable mesh. As you can see that it is a part of the basket, it cannot be removed. I feel वो washing के लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन even if you see my basket, I've been using it for the last 2 years and it is completely clean. तो ऐसा नहीं है कि इस डिज़ाइन में भी आपको वॉश करने में मुश्किल होती है. It's fine. If you closely look at this basket, it says max here, which means that this is the max level to which you can fill it. Please don't fill any food above this max level, वरना उसकी cooking properly नहीं होगी. This was some information about the mesh or the basket, जिसमें आपने basically food को रखना है. Okay, so this part, which is the drawer of the air fryer, it is the part where all the oil and the fat from your food is collected. अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप एयर फ्रायर में फ्राइज़ या रोल समोसास वगैरह बना रहे हो तो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश कर दें, तो जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे इस ड्रॉर में नीचे कलेक्ट हो जाएंगे. इसको भी आपको कुछ यूजेस के बाद निकाल कर धोना पड़ेगा, क्योंकि दिस विल बी हैविंग फूड पार्टिकल्स समटाइम्स, ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल एंड फैट. अगर आपने ऑयल अलग से ऊपर स्प्रिंकल या स्प्रे या ब्रश नहीं किया, फिर भी नेचुरली आपके फूड के अंदर ऑयल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मेकिंग शामी कबाब्स और एनी काइंड ऑफ नगेट्स, द नेचुरल ऑयल फ्रॉम द फूड, ऑल ऑफ दैट ऑयल विल बी कलेक्टेड हेयर. ये इस वक्त धुला हुआ है तो ऑब्वियसली आपको नज़र नहीं आ रहा. Okay, before putting the drawer back inside the air fryer, I want to give you a view from the inside. This is where all the magic happens. This is the machinery. Acha, air fryer is much like a convection oven. A convection oven is this oven which is here. Okay, so convection oven is an oven which has a heating function along with a fan to circulate the air, and your food will be heated properly or evenly from all sides. सो ये कन्वेक्शन अवन है. अब आप अगर देखें तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है. ऑब्वियसली इसको हीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बिजली ज़्यादा कंज्यूम करेगा. जो एयर फ्रायर है, इट इज़ ऑल्सो अ मिनी कन्वेक्शन अवन इन सम वेज. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एन अवन. आई मीन, आप हर किस्म की बेकिंग इसके अंदर नहीं कर सकते, बट द फंक्शनैलिटी इज सिमिलर टू अ कन्वेक्शन अवन, क्योंकि इसके अंदर भी हीटिंग फंक्शन है और फैन लगा हुआ है टू सर्कुलेट द एयर विद इन द ड्रॉर, विद इन द बास्केट, सो योर फूड कैन बी heated or cooked evenly and properly. सो ये एक बहुत कॉम्पैक्ट या पोर्टेबल सी मशीन है. ऑब्वियसली इसको गर्म होने में कम टाइम लगेगा और ये आपको कुकिंग बहुत क्विकली करके दे देगी एज कम्पेयर टू एन ओवन. ओके, सो नाउ आई एम इंसर्टिंग द ड्रॉर बैक विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल. दिस इज़ हाउ इट गोज़ बैक. ओके, सो मैंने सोचा है कि मैं वीडियो में आप लोगों को कुछ कॉमन फूड्स बताऊं और उनको कुक करके भी दिखाऊं कि एयर फ्रायर में कितना टाइम लगता है और वो कैसे कुक होकर निकलते हैं. डू दे लुक क्रिस्पी, डू दे नॉट लुक क्रिस्पी? सो कीप ऑन वॉचिंग. अच्छा, मैं इवन 2 साल से एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर इतनी चीज़ें बन सकती हैं जो मैंने ट्राई नहीं की. सो फार आई हैव यूज़ द एयर फ्रायर फॉर मेकिंग पकौड़ाज, फॉर मेकिंग रोल्स एंड समोसाज, फॉर हीटिंग प्री मेड फूड.
अक्सर मैंने बाहर से कुछ ऑर्डर किया हो, बिकॉज आई डोंट हैव अ माइक्रोवेव, और मैंने क्विकली कुछ चीज़ गर्म करनी हो तो मैं एयर फ्रायर में करती हूँ, लाइक चिकन टिक्का, लाइक नगेट्स, लाइक सैंडविचेस. व्हाट आई डू इज़ आई टेक अ फॉइल, आई place the food inside the foil and then I put it in the basket, then I close it and start the heating. तो बहुत अच्छी गर्म हो जाती है. My favorite food to cook in the air fryer is fries. I take Opa fries. I don't even make the fries myself. I'm lazy like that. And then I put them in the air fryer और वो इतने crispy निकलते हैं. So I'm going to show you a live demo of that. Let's get started. अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आपको एयर फ्रायर में कोई भी चीज़ बनाने के लिए इसको पहले प्री हीट करना पड़ेगा, बट आई डोंट बिलीव इन दैट सिंस इट इज़ सो कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल इन साइज. इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू हीट इट अप. सो मैं तो डायरेक्टली फूड डाल देती हूँ. हेयर आई गॉट सम ओपा फ्राइज. ये फ्रोज़न है तो आप देख सकते हैं कि इट स्टिल हैज़ सम पीसेज ऑफ आइस ऑन इट, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन क्योंकि कुक होकर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे. एंड कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टू सी हाउ दे कम आउट ऑफ द एयर फ्रायर. सो मैंने इसमें फ्राइज रख दिए हैं एंड आई एम गोइंग टू इंसर्ट दिस बैक इन. अगेन मैंने एयर फ्रायर को बिल्कुल भी प्री हीट नहीं किया. आई एम गोइंग टू टर्न इट ऑन. ये कूल हुआ है बिल्कुल, और मैंने फ्राइज़ के ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला. अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सो आई विल सेट द टाइमर फॉर 10 मिनट्स. ये आप देख सकते हैं कि ऑन हो गया है. एंड आई विल पुट द टेम्परेचर अराउंड 180. I think I'll put it for 12 minutes. So let's see after 12 minutes how the fries come out of this. अच्छा, फ्राइज़ इसके अंदर पक रही है. मैंने 12 मिनट का टाइमर लगाया था और मैंने टेम्परेचर 180 पे सेट किया था. मशीन स्टार्ट हुई हुई है और आप देख लें कि जब एयर फ्रायर ऑन होता है तो इसमें से एक आवाज़ आती है. आई एम श्योर यू आर एबल टू हेयर इट बिकॉज इट इज़ अ लिटिल लाउड. सो इट इज़ जस्ट अ हेड्स अप फॉर एनी वन हु इज़ एक्चुअली प्लानिंग टू बाय एन एयर फ्रायर. यू विल गेट दिस साउंड व्हेन इट इज़ कुकिंग. अभी रखे हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फ्राइज़ को. व्हाट आई लाइक टू डू इन द मिडल ऑफ दैट इज़ टू टेक आउट द ड्रॉअर एंड जस्ट सी. एज सुन एज आई टेक इट आउट तो मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है. आपको सेटिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, विच आई फील इज़ प्रिटी प्रैक्टिकल. सो व्हाट आई डू इज़ इन द मिडल ऑफ द कुकिंग आई want to shake my fries because I want to have them cook evenly from all sides. Although इसके अंदर convection function है, but even then I do this. मैंने इसको जैसे इंसर्ट किया है मशीन दोबारा से स्टार्ट हो गई है. तो इन बिटवीन द कुकिंग इफ़ यू आर टेकिंग आउट द ड्रॉअर यू डोंट नीड टू चेंज द टाइमिंग्स और द टेम्परेचर. it will auto adjust. It will stop the cooking as soon as you take it out and then it will resume the cooking as soon as you put it back. ओके, सो द फ्राइज़ आर अबाउट टू बी डन. अगर आप लोग बहुत प्रिसाइज सेटिंग्स के साथ फ्राइज़ बनाना चाहते हैं तो इन्होंने 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 16 टू 22 मिनट्स का फ्रोज़न फ्राइज़ के लिए टाइम और सेटिंग मेंशन की हुई है. मैंने 180 डिग्री सेल्सियस ही यूज़ किया है और मैंने 14 मिनट्स लगाए हैं एंड आई फील दैट इज़ सफिशेंट. अगर आप लोग ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो आप लोग टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. लेट्स टेक आउट द फ्राइज़. ऑल्दो मेरा रोज़ा है और मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं खा तो नहीं सकूँगी, but I'm excited to show you all. These are our fries perfectly done. अब आप देख सकते हैं कि थोड़े से फूड क्रम्स नीचे कलेक्ट हो चुके हैं. And I'm going to take out these fries. ये इस वक्त गर्म हुई हुई है मशीन, so be careful with it. I'm not inserting it fully, बस मैं इसको इधर सहारा दे रही हूँ. अच्छा, so this is the plate. I have the kitchen towel with me, लेकिन आप लोग इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि honestly ऑयल बिल्कुल भी नहीं है हमारे फूड में. These are the fries and what you do, you just take them out like this. Perfectly crispy fries. अच्छा जी, फ्राइज़ बन चुके हैं. मैं इसके अलावा आप लोगों को समोसाज और रोल्स का भी लाइव डेमो दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये हम लोग इफ्तारी में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने ये रोल्स और समोसाज कहाँ से ऑर्डर किए हैं, दिस इज़ स्प्रिंग रोल एंड दिस इज़ चिकन समोसा. अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने ये दोनों चीज़ें कहाँ से ऑर्डर की हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र कर लें, मैंने उसके अंदर तमाम डिटेल्स शेयर की हुई हैं. The best part about using an air fryer is that I just made the fries in it and now I'm using it to cook another item, but I don't have to clean the drawer and the basket in between these cookings क्योंकि हमने oil use ही नहीं किया तो there are no, there's nothing to be cleaned as such. So अच्छा, इसके लिए मैं setting use करूँगी. Time will be again 12 minutes and the temperature will be the same 180 degrees.
done. I'm waiting for the timer to click the ring so I can take them out. Okay, so टाइमर हमारा पूरा हो चुका है एंड आई बिलीव हमारा रोल और समोसा अंदर से अच्छे तरीके से पक चुका होगा. सी व्हाट ब्यूटीफुल गोल्डन क्रिस्प कलर इट हैज़ एंड आई एम गोइंग टू टेक देम आउट. बी केयरफुल क्योंकि इस वक्त खाना अंदर बहुत गर्म है एंड आई एम नॉट यूजिंग माई हैंड टू टेक इट आउट. आई एम यूजिंग दिस टोंग. अगर आप चाहें तो आप और भी पका सकते हैं. आई बिलीव ये अच्छे तरीके से पक गया है और इतना काफ़ी है. सी द अदर साइड ऑल्सो. फ्राइज़ ऐसी चीज़ है जिसको आप बास्केट के साथ यूँ पलट सकते हैं, लेकिन रोल एंड समोसा को आप पलटेंगे तो उसका क्रिस्प ऊपर से ख़राब हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई यूज़ द टोंग टू टेक देम आउट. गोइंग टू पुट दिस बैक. This is the food that we made in air fryer, fries and समोसा एज वेल एज़ द रोल फॉर इफ्तारी. इस वक्त रोज़ा चल रहा है तो मैं कोई भी चीज़ आपको खा कर नहीं बता सकती, लेकिन हम लोग इफ्तारी में इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे. ये बिल्कुल ऑयल के बगैर बनी है, जिसे मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखाया है. दे आर सो क्रिस्पी एंड यमी. जस्ट लुक एट दिस. ये फ्राइज़ और रोल मुझे इतने मज़े का लग रहा है. बार बार ना आई टेंड टू रीच आउट द प्लेट एंड डू दिस, बट आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई एम फास्टिंग. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें, एयर फ्रायर एक माइक्रोवेव से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, लेकिन एक कन्वेक्शन ओवन से कम बिजली इस्तेमाल करता है. आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू नॉट यूज़ द एयर फ्रायर इन पीक आवर्स इफ़ यू आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान. In terms of whether an air fryer is worth investing or not, I believe this is a personal preference. For me, it is important to eat in a calorie deficit, and at the same time, I do want to enjoy yummy food items. So, having deep fried items is not a choice for me. And because of this reason, I believe for me air fryer is worth the money. अगर आप लोग भी गिल्ट फ्री समोसास, पकौड़ास और बहुत ज़्यादा दूसरे फूड आइटम्स एंजॉय करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड दैट यू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एन एयर फ्रायर. जैसे मैंने आपको दिखाया, जो भी चीज़ें आज मैंने लाइव डेमो की हैं वीडियो में, दे वर मेड विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल. ओके गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ फिलिप्स एयर फ्रायर. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. अगर आप लोग के इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स. आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू देम. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स who may be interested to buy an air fryer. Again, अगर आप लोगों के कोई और सवाल हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा. I'll see you in the next video. अल्लाह हाफिज़.